Hello class, welcome back to your computer class. So kids, in our online classes also and in previous few videos we have started doing this chapter that is internet. ठीक है, इंटरनेट हमने पढ़ना शुरू किया था, सोशल नेटवर्किंग साइट के बारे में हमने समझा और कई सारी चीजें. नाउ इट्स टाइम फॉर अस टू रीड अवर बुक. फाइन. So today I am going to start your book, computer book, right? Internet. Let us start. So let us see what are the topic that we have to cover today. So we have to cover the internet, history of internet, things you can do on the internet service provider, world wide web, search engines, web browsers, Microsoft Internet Explorer, सर्चिंग द वेब थ्रू ब्राउजर. ठीक है, ये सारी चीजें हमने क्या करनी है, देखनी है इस बार. चलो, so let us start reading this box and let us understand what this computer wants to tell us. So it is greeting us by saying, hello friends, you're familiar with internet as you have studied about it in the previous class. Also in this chapter you are going to learn more about internet and its uses. तो आज के चैप्टर में क्या होने वाला है, आप इंटरनेट और उसके यूजेस के बारे में पढ़ने वाले हो. नाउ सबसे ऊपर क्या है, इंटरनेट. सो व्हाट इज इंटरनेट? Internet is the largest network that connects millions of computers with each other. What it does? Internet is what? Internet is the largest network. It is the largest network, and what it does is it connects the millions of computers with each other to share information across the world. So it connects millions of computers with each other and share information across the world. इंटरनेट मिलियंस ऑफ कंप्यूटर का एक नेटवर्क है. जैसे मेरा आपका ऐसे कई सारे नेटवर्क कंप्यूटर्स का क्या है, एक नेटवर्क है. और यहाँ पे होता क्या है, it shares the information across the world, like whatever things are that is happening in France, where we can access that also. The internet offer many facilities at your fingertip. So internet offer many facilities at your fingertip. You can send messages to other, you can meet new friends, bank, pay bill, book tickets, sell or buy good, learn, play a game, listen to the music or watch movies. So these all are the facilities that is available there on the internet. Internet पे ये सारी चीजें क्या है, available है. Okay. The biggest advantage of internet is that you can access it from a school, from a computer anywhere. मतलब सबसे बड़ा एग्जांपल क्या, सबसे बड़ा एडवांटेज क्या है इंटरनेट का? द बिगेस्ट एडवांटेज जो इंटरनेट का है वो है दैट आप इसको एक्सेस कहीं से भी कर सकते हो, एट होम, फ्रॉम योर होम, वर्क प्लेस, एट स्कूल और एट अ रेस्टोरेंट, या रेस्टोरेंट पर से कहीं से भी आप क्या कर सकते हो, उसको यूज कर सकते हो. ओके, नाउ मूविंग अहेड. Next is history of internet. So here we are going to discuss how this thing started. Okay. So history of internet. The history of the internet starts with the birth of the ARPANET. History of the internet starts with the birth of the ARPANET, which was the first network of computer in the world. So it was the first network of computer in the world. ये world का क्या है, पहला network. It was set up by the Department of Defense. It was set up by what? It was set up by the Department of Defense of USA in 1969. In 1969, it was set up by the Department of Defense. ठीक है? Now, ARPANET. ARPANET stands for Advanced Research Project Agency Network. ठीक है? This is the full form of ARPANET. And it was developed with the aim of sharing information on research and development. So it was developed with the aim of sharing information on research and development in the field of science and technology. It was used only by the government official and scientists. So it was only used by the government official and scientists. Government official और scientist के द्वारा इसको क्या किया गया था, इसे यूज किया जाता था. मतलब दैट टाइम, उस टाइम की हम बात कर रहे हैं जब जो इंटरनेट था वो आम जनता के लिए, लोकल पीपल के लिए क्या था, वो अवेलेबल नहीं था. वो अवेलेबल था गवर्नमेंट के लिए, गवर्नमेंट ऑफिशियल्स के लिए एंड साइंटिस्ट के लिए.
गवर्नमेंट ऑफिशियल एंड साइंटिस्ट दे कैन यूज द इंटरनेट। ओके, साइंटिस्ट अपने रिसर्च वर्क के लिए, गवर्नमेंट अपनी एजेंसीज या अपने मिशन या प्रोग्राम्स के लिए कंप्यूटर का और इंटरनेट का यूज करते थे। आम जनता के लिए इंटरनेट उस टाइम तक अवेलेबल नहीं था। देन व्हाट हैपन लेटर ऑन, व्हाट हैपन नेक्स्ट लेटर ऑन, बाद के में क्या हुआ, later on what happened, it was opened for the university to spread the education and share their resources. Later on it was opened for the universities, बाद में क्या हुआ, ये यूनिवर्सिटीज के लिए खोला गया, एजुकेशन एंड शेयर देयर रिसोर्सेज, और रिसोर्सेज को क्या किया गया, शेयर करने के लिए इसे ओपन किया गया। ठीक है, द नेटवर्क ग्रू बिगर एंड बिगर एंड लेड टू द प्रेजेंट डे इंटरनेट। नेटवर्क क्या हो गया, बड़ा होता गया, और प्रेजेंट डे क्या हो गया, अभी के आज के टाइम में हम उसे क्या बोलते हैं, नेटवर्क ग्रू बिगर एंड बिगर, और वो क्या बनाया, प्रेजेंट डे का वो इंटरनेट बना। ठीक है, ओके, सो व्हाट हैपेंड नेक्स्ट, लेटर ऑन व्हाट हैपेंड व्हेन दिस थिंग, इंटरनेट को जब बाद में यूनिवर्सिटीज के लिए ओपन कर दिया गया, बाद में इंटरनेट को यूनिवर्सिटीज के लिए ओपन कर दिया गया, तो जब इसको यूनिवर्सिटीज के लिए ओपन किया गया, आइडिया क्या था यूनिवर्सिटीज के लिए इंटरनेट को ओपन करना, टू स्प्रेड द एजुकेशन एंड शेयर देयर रिसोर्सेज। ठीक है, यूनिवर्सिटीज एजुकेशन फैलाएं और लोगों को क्या करें, एडुकेट करें अपने रिसोर्सेज के थ्रू। ठीक है, जैसे आज के टाइम में भी इंटरनेट पे काफ़ी ज़्यादा रिसोर्सेज क्या है, अवेलेबल है। ठीक है, इंटरनेट पे क्या है, आज के टाइम में काफ़ी ज़्यादा रिसोर्सेज अवेलेबल है। ओके, द नेटवर्क ग्रू बिगर एंड बिगर एंड लेड टू द प्रेजेंट डे इंटरनेट। वही नेटवर्क जो यूनिवर्सिटीज के लिए जिस नेटवर्क ओपन किया गया, लेटर ऑन व्हाट हैपेंड, इट ग्रू बिगर एंड बिगर, एंड यस व्हाट हैपेंड, प्रेजेंट डे का इंटरनेट बना। सो मिलियंस ऑफ पीपल हैड एक्सेस टू द इंटरनेट बाय द मिड 1990s। मिलियंस ऑफ पीपल हैड एक्सेस टू द इंटरनेट, बाद में क्या हुआ, मिलियंस ऑफ पीपल, बहुत सारे लोग को, अभी के टाइम में देखो सब, ऑलमोस्ट सबके पास, छोटे छोटे बच्चों के हाथ में भी जो फोन होता है उसमें इंटरनेट कनेक्टिविटी होती है। ओके, now to tap this huge market, most companies start creating their own websites on the world wide web। तो इस बड़े मार्केट को टैप करने के लिए क्या होने लगा, जो इस बड़े मार्केट को टैप करने के लिए हुआ क्या, जो बड़ी बड़ी एजेंसीज थी, नेटवर्क्स थे वो, और कंपनीज हैं, what they have started doing the web advertisement, और they have started creating their website on the internet। देखो, इंटरनेट पे मिलियंस ऑफ पीपल थे, उन्हें अपना अपना सामान जो था वो बेचना था, तो उसके लिए लोगों को एडुकेट करने के लिए उन्होंने क्या किया, अपनी वेबसाइट डाल दिया। कहाँ डाल दिया अपनी वेबसाइट, अपनी वेबसाइट उन्होंने बना दिया इंटरनेट पे। फाइन, तो ये कंपनी की क्या थी, एक तरह की स्ट्रेटेजी थी। इस तरह से करने से क्या हुआ, मिलियंस ऑफ पीपल को क्या हुआ, उनके प्रोडक्ट के बारे में आइडिया लगा। Okay, so I'm going to show you few example of the companies that has opened their, you know, website there। So सबसे पहले, first of all I'm going to search yeah, Tata। Okay, yeah, देखते हैं टाटा मोटर्स। चलो टाटा मोटर्स के बारे में ही देखते हैं। ठीक है, अब देखो यहाँ पे आपको मेरी स्क्रीन पे दिख रहा है कि टाटा मोटर्स की पूरी क्या है, टाटा मोटर्स की एक पूरी की पूरी वेबसाइट हमारे स्क्रीन पे है। ठीक है, और जब देखो मैं इसको स्क्रॉल डाउन कर रही हूँ तो ये क्या अपने जो प्रोडक्ट्स थे वो बता रहे हैं, एंड देखो हाउ कूल दिस इज, राइट। जहां जहां देखो, कहने का मतलब क्या, टाटा ने कितनी खूबसूरती से ऑनलाइन अपना वेबसाइट बनाया, और अब उसके बाद क्या हो रहा है, ये खुद को क्या कर पा रहे हैं, एडवर्टाइज कर पा रहे हैं।
तो मैं चाहूँ तो इसके वीडियोस भी मैं प्ले कर सकती हूँ। देखो यहाँ पे कितने सारे पिक्चर्स आ गए। या सपोज मुझे कोई मूवीज देखनी है, सच एज मुझे फ्रोजन के बारे में कुछ पता करना है, ठीक है, फ्रोजन 2 या फ्रोजन 1, एनी ऑफ द फिल्म, इफ आई वांट टू नो अबाउट दैट, व्हाट आई हैव टू डू, आई हैव टू सर्च। ठीक है, मैंने ये सर्च किया और यहाँ पे देखो मेरे सामने फ्रोजन की जितनी भी तरह की पिक्चर्स हो सकती हैं वो सारी क्या हो गई हैं, मेरे सामने आ चुकी हैं। ठीक है, सो दिस यू कैन सी, है ना। ओके क्लास, सॉरी, नाउ मूविंग बैक। ठीक है, तो ये बात हो गई एंटरटेनमेंट की। तो इंटरनेट ऑफर्स मेनी डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ एंटरटेनमेंट सच एज रेडियो एंड टेलीविजन, ब्रॉडकास्ट, वीडियो एंड म्यूजिक। यू कैन फाइंड पिक्चर फ्रॉम द लेटेस्ट फिल्म्स एंड लिसन टू द म्यूजिक इवन बिफोर इट इज अवेलेबल इन द स्टोर। तो स्टोर में म्यूजिक अवेलेबल होने से पहले व्हाट यू कैन डू, यू कैन प्ले म्यूजिक ऑन द इंटरनेट। इंटरनेट पे आप म्यूजिक प्ले करके, यूट्यूब पे म्यूजिक प्ले करके आप क्या कर सकते हो, देख सकते हो। Now, the next is programs. You can find thousands of programs to be used on your computer such as word processor, drawing program, games and accounting program. तो programs इंटरनेट पे आप कई सारे प्रोग्राम्स पा सकते हो। जैसे कि अभी मुझे पिछली क्लास में लोगो पढ़ाना था, तो मैंने क्या किया, इंटरनेट से मैंने क्या किया, लोगो को डाउनलोड किया। सो व्हाट यू कैन डू, यू कैन फाइंड थाउजेंड्स ऑफ प्रोग्राम टू बी यूज्ड ऑन योर कंप्यूटर सच एज वर्ड प्रोसेसर, ड्राइंग प्रोग्राम्स, गेम्स एंड अकाउंटिंग प्रोग्राम। ठीक है, नाउ द नेक्स्ट इज बाय एंड सेल। You can order product on the internet while sitting at your home. So by sitting at your home also you can order product from the internet. You can purchase items such as books, flower, music, CDs, pizza, etc. online. So what you can do, you can purchase items such as book हो गए, flower हो गए, music, CDs, pizza, etc. क्या कर सकते हो, ऑनलाइन आप खरीद सकते हो। Now next is chat. This feature allows you to exchange the type messages with another person on the internet. So this feature what it does, it allows you to exchange the type message. देखो buy and sell की बात हुई, तो चलो पहले buy and sell समझ लेते हैं। So what is written here, that you can order product on the internet while sitting at home. While sitting at home what you can do, you can order your product. ठीक है, you can purchase items such as books, you can purchase items such as books, flower, music, CDs, पिज्ज़ा ऑन ऑनलाइन। ठीक है, सपोज मुझे कोई बुक खरीदनी है, तो मैं इंटरनेट पे गई, मुझे वो बुक सर्च करनी है, तो मैंने वो बुक सर्च किया। सपोज मुझे ज्योग्राफी की बुक सर्च करनी है, ठीक है, सपोज ज्योग्राफी ऑफ इंडिया करके कोई बुक है, मुझे वो सर्च करनी है। ओके, सो या इट इज टेकिंग टाइम, लेट अस चेंज द, हाँ आ गया। ठीक है, ज्योग्राफी ऑफ इंडिया बुक कर देते हैं। ठीक है, अब बुक कर दिया, अब देखते हैं कितना टाइम में वो आता है। ठीक है, देखो ज्योग्राफी ऑफ इंडिया करके जितनी भी बुक्स थी वो सारी यहाँ पे हमें दिख रही हैं। ज्योग्राफी अ कॉम्प्रिहेंसिव स्टडी, ज्योग्राफी ऑफ इंडिया, ज्योग्राफी ऑफ इंडिया माजिद हुसैन की, ज्योग्राफी ऑफ इंडिया इनकी, ज्योग्राफी ऑफ इंडिया, मतलब जितनी सारी बुक थी वो यहाँ पे हमें अवेलेबल दिख रही हैं। ठीक है, अच्छा ठीक है, तो इस तरह से देखो हम क्या कर सकते हैं, बुक्स क्या कर सकते हैं हम यहाँ पे, वी कैन परचेज बुक एंड नॉट ओनली परचेज, वी कैन सेल इट ऑल्सो। हम चाहें तो अपना सेकेंड हैंड जो भी सामान है, व्हाट वी कैन डू, वी कैन सेल इट ऑल्सो, वी कैन सेल अवर ऑब्जेक्ट्स ऑल्सो ऑन द इंटरनेट। ठीक है, तो यहाँ पे बाय एंड सेल। नाउ द नेक्स्ट फीचर इज चैट। तो जैसे कि चैट का फीचर है, तो दिस फीचर अलाउज यू टू एक्सचेंज द type message with another person on the internet. So it allows you to exchange the type message with another person on the internet. A message you send will instantly appear on the other person's computer. So a message you send will instantly appear on the other person's computer. You can chat with a person or a group at any point of time. So किसी भी point of time में आप what you can do, you can chat with a person or a group. आप कभी भी उस पे किसी भी व्यक्ति से आप क्या कर सकते हो, यू कैन चैट। नाउ नेक्स्ट इज
सोशलाइज विथ पीपल, तो अब इसके बारे में तो हमने एक पिछली वीडियोस में पढ़ा था दैट हाउ वी कैन सोशलाइज विथ पीपल। तो we can join the discussion group on the internet to meet like minded people. Like minded people means what? यहाँ पे एक term use किया गया है, is a term that is like minded people. So like minded people means what? वो people like minded means मतलब वो लोग जो कि एकदम एग्जैक्ट हमारी तरह ही क्या करते हैं, हमारी तरह ही सोचते हैं, वो लोग जो कि हमारी तरह ही क्या करते हैं, सोचते हैं। तो what we call them? We call them like-minded people. ओके, तो यहाँ पे जो लाइन लिखी है लाइक माइंडेड पीपल, तो उससे क्या मतलब है? वो लोग जो कि एग्जैक्ट हमारे जैसा क्या करते हैं, हमारे जैसा सोचते हैं, जैसे कि हमारे फ्रेंड्स। तो यू कैन ज्वाइन द डिस्कशन ग्रुप ऑन द इंटरनेट टू मीट द लाइक माइंडेड पीपल। यू कैन आस्क क्वेश्चंस, डिस्कस प्रॉब्लम एंड रीड इंटरेस्टिंग स्टोरीज। जैसा ये चीज कहाँ होती है, ये चीजें हम देखते हैं फेसबुक पे। ये सारी चीजें हम लोग फेसबुक पे देखते हैं। कैसे देखते हैं? फेसबुक पे हम उन्हीं से दोस्ती करते हैं जिनके जो पोस्ट हैं या जो व्यूज हैं वो क्या करते हैं, वो क्या होते हैं, हमसे मिलते हैं। ओके, नाउ द नेक्स्ट इज प्ले ऑनलाइन गेम। अब ये तो बहुत ही अच्छी चीज मिली, बच्चों की फेवरेट प्ले ऑनलाइन गेम। ये इसका एग्जांपल मैंने आपको ऑनलाइन क्लास में दिखाया था दैट हाउ वी कैन प्ले ऑनलाइन गेम्स। हाँ, अगर मैं यहाँ पे सर्च करूं टिक टैक टो, इस गेम का नाम आप लोगों ने सुना होगा। टिक टैक टो, और यहाँ पे देखो आई एम एबल टू प्ले दिस गेम। ठीक है, सी इफ आई वांट आई कैन प्ले दिस गेम, और मैं हार गई। ओके, so what we can do, we can play online games also. Now next is internet service provider. Next is what? Internet service provider. So internet service provider is a company that provide access to the internet for a monthly fee. Internet service provider कौन होते हैं? एक कंपनी जो कि इंटरनेट प्रोवाइड करती है एक मंथली फीस पे। ओके, टू कनेक्ट टू द इंटरनेट यू मस्ट साइन अप फॉर अकाउंट। जैसे कि सपोज करो मुझे MTNL BSNL किसी का भी अगर इंटरनेट चाहिए तो सब फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट आई नीड टू साइन अप। ठीक है, जैसे गूगल पे में भी करते हैं, गूगल पे से भी जब हम रिचार्ज कराते हैं तो सबसे पहले व्हाट वी डू द साइन अप। देयर आर सेवरल टाइप ऑफ सर्विस प्रोवाइडर हु विल ऑफर यू द डिफरेंट सर्विस एंड अदर बेनिफिट। तो अलग अलग तरह की सर्विस, अलग अलग तरह की बेनिफिट दैट वी कैन गेट। एंड सरप्राइजिंगली हम जिस मोबाइल रिचार्ज की बात कर रहे हैं, मोबाइल रिचार्ज की अगर हम बात करें तो वो मोबाइल रिचार्ज भी हम किससे करा सकते हैं? नाउ वी कैन डू दैट विद द हेल्प ऑफ अवर फोन ओनली। फोन या इंटरनेट की मदद से हम कर सकते हैं। तो अगर हमें ऑनलाइन, जैसे अब तो हमें शॉप पे जाके भी रिचार्ज नहीं कराना पड़ता, दैट वी कैन डू विद द हेल्प ऑफ ओके, दैट वी कैन डू विद द हेल्प ऑफ इंटरनेट। वो हम किससे कर सकते हैं? दैट वी कैन डू इंटरनेट की हेल्प से हम क्या कर सकते हैं? अपने फोन को क्या कर सकते हैं? रिचार्ज कर सकते हैं। ओके, so there are different type of service provider who will offer you different service and benefit at the different cost. You can choose from many ISPs in India. What you can do, you can choose from many ISPs in India. The main ones are Tata Indicom, MTNL, BSNL, Airtel, DEN, Dishnet and etc. Okay, so class, this is it for today, and from the next class we will start from World Wide Web.
नाउ अगर हम अब इस वेबसाइट को ध्यान से देंगे तो हमें पता चलता है कि टाटा ने ऑलमोस्ट अपने सारे सभी चीज़ों के बारे में यहाँ पे एक्सप्लेन किया हुआ है। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे CSR पे क्लिक करूँ तो देखो यहाँ पे ये बता रहे हैं हम कि इनके CSR मतलब कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या क्या है। तो ये भी क्या है, ये भी एक तरह का क्या कर रहे हैं यहाँ पे, ये एडवर्टीजमेंट कर रहे हैं। यहाँ पे ये भी एक तरह का क्या है, एडवर्टीजमेंट है। इनके जो जो प्रोग्राम्स है और जो सारी भी चीजें CSR में आती हैं वो सारी चीजें ये कर रहे हैं। ठीक है, ओके। नाउ अगर मैं देखूं करियर्स, मान लो किसी को टाटा मोटर्स में जॉब करनी है या वहाँ का करियर देखना है कि वहाँ पे क्या हो सकता है, तो नाउ यहाँ पे देखो इनका क्या है, एक ये वेब पेज है। तो मतलब इन्होंने अपना ऑलमोस्ट सारी चीजें, देखो यहाँ पे इन्होंने एक न्यूज़पेपर कटिंग सी लगा रखी है। तो मींस इस कंपनी ने अपनी पूरी एडवर्टीजमेंट कहाँ की है, ऑनलाइन इन्होंने अपनी पूरी एडवर्टीजमेंट कर रखी है। ठीक है, ओके। नाउ या मूविंग अहेड, तो ठीक है, हमने देखा कि कंपनीज अभी क्या कर रही हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड, दे हैव यूज्ड द इंटरनेट एंड व्हाट एल्स दे हैव डिड, दे हैव क्रिएटेड देयर ओन वेबसाइट ऑन द इंटरनेट। इंटरनेट को उन्होंने क्या कर रखा है, अपनी वेबसाइट उन्होंने बना रखी है। ओके, so things you can do on the internet. Now the next topic is what are the things that we can do on the internet. इंटरनेट पे कौन कौन सी चीजें जो हम कर सकते हैं। So almost anything that you can do in the real world has an equivalent in the online world. वो सारे काम जो कि आप रियल वर्ल्ड में कर सकते हो वो सारे काम आप कहाँ कर सकते हो, आप ऑनलाइन वर्ल्ड में भी वो सारे काम क्या कर सकते हो, कर सकते हो। So what these include reading news, whether it is reading news, searching information, chatting with other people, making friends, sharing data and information, shopping, banking, playing games, listening to music or watching movies. Listening to music or watching movies. Okay, almost anything that you can do in the real world has an equivalent in the online world. Online world में क्या है, उसका just equivalent चीजें available हैं। अब जैसे कि अगर मैं अभी मैं किसी से मिली, मेरी उससे बातें हुई, तो अगर मैं किसी व्यक्ति से मिलके रियल वर्ल्ड में बात कर सकती हूँ, तो सिमिलरली विद द हेल्प ऑफ फोन एंड इंटरनेट आई कैन talk to him or her or in the virtual world also, virtually भी I can communicate with him or her। ठीक है, communicate मैं कर सकती हूँ, वर्चुअली भी हम क्या कर सकते हैं, उनसे क्या कर सकते हैं, बातें कर सकते हैं। ओके, सो इसीलिए यहाँ पे एक लाइन लिखी गई है कि ऑलमोस्ट एनीथिंग दैट यू कैन डू इन द रियल वर्ल्ड हैज एन इक्विवेलेंट इन द ऑनलाइन वर्ल्ड। ऑनलाइन वर्ल्ड में उसका इक्विवेलेंट है। This include reading news, searching information, chatting with other people, making friends, sharing data and information and shopping with the banking and playing games. ओके, ये सारी चीजें वहां पे क्या है, अवेलेबल है। Now next is what? Stay informed. The internet gives you access to information on any subject of interest. This makes the internet a valuable research tool. ठीक है, so the internet gives you access to information on any subject. So it gives us access to information on any subject of interest. This makes the internet a valuable research tool. तो ये क्या बनाता है, इंटरनेट को एक valuable research tool बनाता है। Now next is do research. Do research. You can use internet search facility to research just about any topic. So you can research any topic of you can think. The information obtained from the internet can help you in your school project. So the whatever the information that you get, you can use in your स्कूल प्रोजेक्ट ऑल्सो। स्कूल प्रोजेक्ट में भी आपको वो क्या होगा, वो सारे इंफॉर्मेशन आपके क्या होंगे, अवेलेबल होंगे। ओके, तो अगर मैं ऐसा कुछ सर्च करूं तो लेट अस सी हमें क्या मिलता है। अगर मैं यहाँ पे सर्च करूं लाइक सोलर सिस्टम, ठीक है,
ना अगर मैं देखो स्कूल प्रोजेक्ट के लिए इफ आई हैव टू सर्च दिस, ठीक है, सोलर सिस्टम हमें दिख रहा है यहाँ पे। अगर मैं इसके इमेजेस पे जाऊँ तो देखो कितनी वाइड रेंज ऑफ इमेजेस हमारे पास यहाँ पे अवेलेबल है सोलर सिस्टम की, ठीक है। तो इन सब का यूज हम किस में कर सकते हैं, अपने स्कूल प्रोजेक्ट के लिए इन सब का यूज हम कर सकते हैं। सी लुक एट दिस इमेज, हाउ ब्यूटीफुली इट इज पिक्चर्ड। ओके, कहाँ गई वो ब्यूटीफुल इमेज, ये रही, है ना। देखो ये सारी इमेजेस, सी, है ना, हाउ ब्यूटीफुली इट इज picture, right? Okay. Similarly now if I wish to search something like अगर मुझे अब सर्च करना है, सपोज अगर मुझे अब सर्च करना है, क्योंकि पहली लाइन थी कि स्टे इनफॉर्म, तो अगर मुझे सर्च करना है फार्मर्स प्रोटेस्ट, जो फार्मर्स प्रोटेस्ट पे बात हो रही है, अगर मुझे उसके बारे में सर्च करना है तो मुझे उसके बारे में भी यहाँ पे न्यूज़ या इमेजेस, यहाँ पे पूरी न्यूज़ या इमेजेस मुझे यहाँ पे मिल जाएंगी, ठीक है। तो कहने यहाँ पे हमें उसकी पूरी इमेजेस या न्यूज़ हमें मिल जाएगी, करेक्ट। तो देखो इंटरनेट हमें क्या करता है, इन्फॉर्म्ड रखता है, इंटरनेट कीप अस इन्फॉर्म्ड, ठीक है। So the internet give you the access to the information on any subject of interest. This make the internet a valuable research tool. Now do research. Next is what, do research. So you can use internet search facility to research just about any topic you can think of. The information obtained from the internet can help you in your school project. So the internet that you obtain from here, it can help you in your school project. Now the next is what? Next is email. अगला topic is what? Email. The electronic mail enable us to exchange messages with people around the world. So now the next topic is what? It's about the email. So what about the email? The electronic mail enable us to exchange messages with people around the world. People around the world, उनके साथ what we can do? We can exchange our messages. देखो मेल से क्या, अब जैसे अभी आपके यूटीज हुए या हाफ ईयरली एग्जामिनेशन, तो आपने क्या किया, जो भी उसमें आपके आंसर्स थे वो आपने, मैं अपने टीचर को क्या किया, वो जो भी आपके आंसर्स थे वो आपने अपने टीचर को क्या किया, मेल किया, ओके। जो भी चीजें थी वो आपने अपने टीचर को मेल की थी। तो द इलेक्ट्रॉनिक मेल enables us to exchange message with people around the world including friends, family members, colleague, customer and even people you met on the internet. Email is what? It's an exciting feature of the internet as we can send and receive messages over the long distance also. So email is what? It's an exciting feature of the internet as we can, what we can do, we can send and receive messages over the long distance also. We can send and receive message over the long distance also. तो इस तरह भी क्या है, इलेक्ट्रॉनिक मेल क्या है, हमें enable करता है to exchange messages with the people around the world, ठीक है। Now the next is what? Entertainment. So it also helps us in entertainment. This thing, um, internet help us in entertainment. The internet offers many different forms of entertainment such as radio and television, broadcast video and music. You can find picture from the latest film and listen to the music even before it is available in stores. तो चलो अगर मैं तुम्हें एक चीज दिखाऊं, सपोज मुझे एंग्री बर्ड 2 के बारे में पता करना है, ठीक है। सपोज अगर मुझे एंग्री बर्ड 2 मूवीज के बारे में पता करना है, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे क्या किया, एंग्री बर्ड 2 मूवीज यहाँ पे मैंने सर्च किया। देखो इसके बारे में पूरी पिक्चर वीडियोस मेरे सामने क्या है, यहाँ पे मेरे सामने ये पूरी पिक्चर और वीडियोस मेरे सामने क्या है, आ चुकी हैं, ओके, यू कैन सी दिस। तो मैं चाहूँ तो इसकी